In class 11th we have already done it. Note making. What is note making? First of all, let us understand this. We have a passage. Let me show you a passage. This is a book and this is a passage. Fine. We will read this. There may be around 300, 400 or 500 words in that. Sometimes we find a passage in around 800 words or 700 words. Fine. We read that and we try to condense, find out some information. We will find some information from this passage, because it is not easy to remember all these 700 or 800 words. It is not easy to remember the complete passage. So what we must do, we must get the information and we should be able to write that in a proper way. What is that proper way? We will make notes. Means all things are not important here. We will just do the passage we read, information we get, and then we make some notes. And these notes are made in some forms. There is a proper way of making these notes. How? A proper format has to be followed. From that passage, our first thing, like, see this is a sample passage before us. This is a passage. We will read this passage first and then we will find out what is it about, किस चीज के बारे में है, and one title will be written here. So first what will be there? We will write one title of the passage. Suppose we have got the title. After we have found out the title, we will go for the main points. सबसे पहला काम पैसेज में से टाइटल निकालना है. टाइटल निकालने के बाद में जितना भी पैसेज है, जितनी भी चीजें उसमें है, we will find out 3 to 4 main points. 3 to 4 main points. भाई वो पैसेज किसी न किसी चीज के बारे में जरूर होगा. 3 to 4 main points. And these main points will again be explained in subpoints. Fine. Let us write one example here. I have a passage before me, and suppose we have a title is lockdown. Fine. This is a title which we have found out. This must be written in capital letters. Lockdown. So first thing what we did, we read the passage which was based on lockdown. We found out one topic, found out the title is lockdown. Then our next thing will be, we will write the notes on this topic, on this title. We will find out notes. कहाँ से मिलेंगे? From the same passage which we read. Suppose हमने मान लिया है the passage was about lockdown actually. So here we will find out 3 to 4 main points. Simply see, this is 1, and here I will write a point. That would be a main point. Then I will explain this again. इसी main point को I will explain in sub point. So यहाँ पे I will write main point which I have found out. Then 1.1, it will be a sub point. It will be a sub point. 1.2, again there would be sub point.
2. These both, this and this related to main point actually. Now I have found out, मैंने फिर से क्या किया, from the same passage I have got another main point that will be written here. So here I will write the main point, and then I will again make sub points of this 2.1, 2.2 sub points, and again sub point. Same way there would be third main point 3.1, means this one will be related to this point number 3, that's why it is 3.1. 3.1 again it is a sub point. 3.2 it is also sub point. You can write 3 main points, 4 main points or 5 main points. Every main point should have at least 2 or 3 sub points. So this is a structure. This is a structure of writing or making notes. You see, after reading this passage, after reading a passage, we got the title, we found out the main points, then we converted that into sub points, explained that into sub points. One more thing is required here. These points and sub points will be written in phrases. They will be written in phrases. What are phrases? Phrase क्या होते हैं? We studied in our junior classes. जो phrase हमने पढ़े थे, phrase, clause, sentence, if you remember, आपको याद हो तो, अगर मैं ये कहूँ कि out of the room, this is a phrase. A meaningful collection of 2 or 3 words which does not have a subject, which does not have a verb, that is called a phrase actually. In the room एक फ्रेज है, ये मैंने लिखा है लॉकडाउन, मेन पॉइंट, सब पॉइंट एक फ्रेज है. तो अगर मैं इस लॉकडाउन को यहां एक्सप्लेन करूंगा इस पैसेज में, जैसे पैराग्राफ्स थे उनके अंदर पैराग्राफ्स की तरह इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं. आई विल एक्सप्लेन इन फ्रेजेस. पॉइंट को पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करूंगा, तभी तो कम वर्ड्स में इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं. एंड व्हेनेवर आई सी this way I have made the notes, in future whenever I want I can see and I can understand, because the complete passage cannot be remembered. complete passage को याद नहीं रखा जा सकता. तो इस तरीके से लिखेंगे. पहली चीज तो ये phrases लिखेंगे. दूसरी चीज एक और होती है, that is आप इसके अंदर मेंशन करेंगे abbreviations. what are abbreviations? Abbreviations are just like short forms, contracted forms कह सकते हैं. अगर मैंने बोल दिया है SDM, आपका SDM कौन है? तो ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, यानी कंप्लीट नाम क्या है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. मैंने अब्रीविएशन यूज करे, दिस इज अब्रीविएशन. मिनिमम 4, ये अब्रीविएशन जो होते हैं मिनिमम 4 आपको यूज करने हैं. दूसरी चीज, आफ्टर यू हैव मेड योर नोट्स, नोट्स के बनने के बाद में आप क्या करेंगे? आप एक बॉक्स बनाएंगे, वहां लिखेंगे आपकी 2 अब्रीविएशन, और उसमें वो अब्रीविएशन लिखेंगे. सपोज आपने बनाया था अकाउंट, तो इसको लिखेंगे अकाउंट. ठीक है. आपने बनाया था SDM, तो यहां लिखेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. मिनिमम 4 शुड बी देयर. 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं. नोट मेकिंग क्यों होती है? फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अगर हम ये चाहते हैं कि किसी इंफॉर्मेशन को हम अपने पास रखें, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज, ऐसे किसी पैसेज के फॉर्म में नहीं. जैसे ये पैसेज है, नोट लाइक दिस पैसेज, इसको हम ऐसे रखते हैं. सी इफ यू आर एबल टू सी दिस, ये एक यहां देखते हैं, ये एक पैसेज है. थोड़ा सा मुश्किल होगा समझ पाना, लेकिन फिर भी
दिस वॉज अ पैसेज और ये नोट्स हैं, सबसे ऊपर टाइटल लिखा है नोट्स और उसके बाद मेन पॉइंट्स और उसके बाद सब पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स सब पॉइंट्स, 3 मेन पॉइंट सब पॉइंट्स। ये पैसेज रिलेटेड है किससे? दिस पैसेज इज रिलेटेड टू ओलंपिक्स। तो इसने टाइटल दिया है मॉडर्न ओलंपिक्स। यहाँ पे टाइटल मेन पॉइंट की जगह पे इसने लिखा है फर्स्ट में ओल्ड ओलंपिक्स। फिर इसने 1.1 1.2 पॉइंट्स बनाए। हेल्ड इन 776 BC इन ओलंपिया बिकेम पॉपुलर। इस तरीके से 2-3 पॉइंट्स इन्होंने बनाए। फ्रेजेस में लिखे, वी मस्ट राइट दैम इन फ्रेजेस, इफ वी डो नॉट राइट दैम इन फ्रेजेस तो वो अपने आप में फिर से एक पैसेज बन जाएगा एंड इट इज ऑफ नो यूज। ध्यान रखना है आपको, पैसेज रीड थॉरोली, improve your reading skills. After you have improved your reading skills, you will be able to understand, you will be able to get information from the passage. Read किया, found out information निकाली, notes बनाएंगे। notes किस structure में बनाएंगे? इस structure में। सबसे पहले उसका एक title निकाल के अलग से लिखेंगे, उसके बाद में उसके main points 3-4 जितने भी बनते हैं 1 2 3, फिर हर एक पॉइंट के 1 या 2 और 3 सब पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स फ्रेजेस में होंगे, सेंटेंसेस में नहीं होंगे। वी विल यूज शॉर्ट फॉर्म्स जिनको आप कह सकते हैं अब्रीविएशंस। अब्रीविएशंस उसमें यूज करेंगे जितने भी बड़े वर्ड्स हैं, और वी शुड टेक केयर कि जो एब्रीविएशंस होते हैं दे मस्ट बी रिकग्नाइजेबल। जैसे किसी ने लिख दिया है यहाँ अकाउंट लिख दिया है तो हम समझ सकते हैं ये अकाउंट होता है, हम बनाएंगे। वहां पे लिखा हुआ था फंक्शन, तो आपने FNC कुछ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे की टू अब्रीविएशन लिखने के बाद में। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इजी। एक ये तो स्ट्रक्चर था, गेटिंग माय पॉइंट, दिस वाज अ स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट। अब इसकी मार्किंग स्कीम और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, बोर्ड में ये कैसे आता है। अभी जो स्ट्रक्चर था 2019 and 20 का है ना, आई हैड टू गो फॉर कॉपी चेकिंग। तो जो मार्किंग स्कीम थी CBSE की वो क्या थी, ये 4 मार्क्स में आता है। टाइटल जो हम लिखते हैं, जैसे मैंने बताया है पैसेज को रीड किया हमने एंड देन वी गॉट द टाइटल, सो दिस इज फॉर 1 मार्क इफ यू हैव रिटन अ टाइटल। देन उसके जो नोट्स होते हैं यहां पे उसको हम बोलेंगे कंटेंट, कंटेंट्स में 2 मार्क्स। एंड ये जो अब्रीविएशन जो नीचे लिखे हैं आई हैव टोल्ड यू, क्या ध्यान रखना है, मिनिमम 4 अब्रीविएशंस यू विल राइट। तो वो अब्रीविएशंस जो होते हैं उनका भी 1 मार्क होता है। तो दिस इज 4 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में आता है, इन 11th क्लास ऑल्सो, इन 12th क्लास ऑल्सो। दिस इज ऑफ 4 मार्क्स विच वी हैव टू लर्न, विच वी हैव टू रिमेंबर। हमें याद रखना होगा, ध्यान रख पाएंगे तभी हम इस चीज को लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नोट मेकिंग। अभी हम एक और करेंगे, एक सैंपल लेके चलते हैं, एक पैसेज लेके चलते हैं, उस पूरे पैसेज को रीड करके हम उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं। क्लियर? नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट करो। So students see, we were talking about note making. Suppose हमने एक पैसेज पढ़ा है, that passage is based on coronavirus, ठीक है। This is the sample of note making. As I told you, it is very simple, बहुत आसान है ये। हमने पढ़ा एक पैसेज, इंफॉर्मेशन हमें मिली एक पीस ऑफ राइटिंग से, और वो किस पे बेस्ड था, कोरोना वायरस के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, वी फाउंड आउट अ टाइटल, हमने इसमें से टाइटल निकाला, दैट इज कोरोना वायरस। नोट्स
नाउ वी हैव टू मेक नोट्स ऑन दैट। तो हमने क्या किया, पहला हमने नोट बनाया ओरिजिन कहाँ से हुआ, चाइना से हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड एक वन मोर पॉइंट वाज मेड, दिस इज स्प्रेड इन वुहान, यहां से वो स्टार्ट होता है, ओके। अननोन फ्लू, इट इज ऑल्सो रिलेटेड दिस अननोन फ्लू, दिस इज द एब्रिविएशन। मैंने आपसे बताया था कि वी नीड टू यूज एब्रिविएशंस, और कितने होने चाहिए, मिनिमम 4 एब्रिविएशंस वी नीड टू यूज। तो दिस इज एब्रिविएशन। नेक्स्ट पॉइंट हमने बनाया अटैक, अटैक्स, इट अटैक्स, मैंने अटैक्स लिखा है, यू कैन राइट सम बेटर, डिपेंड्स ऑन यू। लंग्स, लंग्स पे अटैक करता है, आगे और ऐड कर सकते हो, अटैक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां और बना सकते हो आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। कंटेजियस है ये, दिस अगेन रिलेटेड टू द मेन पॉइंट, कंटेजियस है। स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स, अगेन दिस इज अब्रीविएशंस, this is also abbreviation, spreads through droplets. Point number 3, 2 का 2.3 we made, more dangerous for people, किन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा डेंजरस है किन के लिए, पीपल विद डायबिटीज़, है ना, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी है, और अ पर्सन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एड्स, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उनके लिए ज़्यादा। तो आई हैव मेंशन मेन 2 थिंग्स हियर एग्जैक्टली, यू कैन मेंशन सम मोर। थर्ड पॉइंट मैंने बनाया है, दिस इज वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक, दिस इज अ वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है, व्हाट इज पेंडेमिक, पेंडेमिक तो वो है ना जिसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में फैल जाए, दैट इज पेंडेमिक। तो वर्ल्ड वाइड है, ये पूरी दुनिया में है, अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड को हमने एब्रीविएशन बना दिया, ये भी एक एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म कुछ कह सकते हो। नो वैक्सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया में कोई इसका वैक्सीन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इन फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में ये जितनी भी चीज़ें हैं हमने बहुत बड़े पैसेज को एक्सप्लेन किया है, एंड दिस वी कैन सी वेन एवर वी वॉन्ट, जब भी हम चाहें हम इसको देख सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोजेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, फिर से बोल रहा हूं, सिस्टमेटिक प्रोजेक्शन ऑफ या प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमेशा केवल पैराग्राफ, पैसेज, स्टोरी फॉर्म में नहीं होती है, इट कैन बी देयर इन नोट मेकिंग फॉर्म्स ऑल्सो। हमने नोट्स बना लिए हैं, ये एक बेसिकली कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट है, जनरली स्टूडेंट्स यूज दिस, आमतौर पे हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। यू कैन मेक एनी फॉर्मेट, अगर आपको लगता है कि सर आई विल मेक सम अदर वे ऑफ, मैं नोट्स बनाऊंगी लेकिन नोट्स को मैं अलग तरीके से समझाऊंगी, मेरा फॉर्मेट अलग होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, डिपेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 ABC लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल ABC ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। दिस वॉज अ सिंपल टॉपिक, 4 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स आपको बड़े इजीली मिल सकते हैं बोर्ड के अंदर, नोट मेकिंग का टॉपिक। मैंने देखो फिर से उन्हीं 3-4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले टाइटल लिखा है जो कि एक 1 मार्क टाइटल के लिए होता है, फिर ये जितनी भी चीजें लिखी हैं आप ध्यान से देखो, दे आर नॉट सेंटेंसेस, दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, एक्चुअली दे आर फ्रेजेस, इन सभी को मैंने फ्रेजेस में लिखा है, तो फ्रेजेस लिखने बहुत जरूरी हैं। दूसरा, मैंने इसमें अब्रीविएशंस यूज किए हैं, जैसे मैंने कहा आपको मिनिमम 4 यूज करने हैं। आफ्टर यू हैव रिटन द नोट्स, बनाने के बाद में ऐसे एक बॉक्स बनाया आपने, उसमें लिखा है की टू अब्रीविएशंस, की टू अब्रीविएशंस, अननोन, डायबिटीज, डायबिटिक जो भी है हमने लिखा, ड्रॉपलेट्स, डायबिटिक, वर्ल्ड। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अब्रीविएशंस, मिनिमम 4 यू विल यूज, इनके लिए अलग से आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है, 1 मार्क यहाँ, 1 मार्क यहाँ, और ये पूरा का पूरा जो मैटर है, नोट्स हैं, ये नोट्स ये 2 मार्क्स के होते हैं, दीज नोट्स फॉर 2 मार्क्स। इसके अंदर आपको देखना है
हम गलतियां क्या करते हैं, समटाइम्स हम कंप्लीट पैराग्राफ में से वी कॉपी द सेंटेंसेस एंड वी पुट देम हियर, सम स्टूडेंट्स डू इट, पूरे के पूरे सेंटेंसेस को उठा उठा के यहां लिख देते हैं पॉइंट्स में. दैट इज नॉट नोट मेकिंग, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर वेदर ही गिव्स मार्क्स और नॉट, बल्कि मार्क्स वो देता ही नहीं है. तो ध्यान रखना है, दैट इज नॉट मेकिंग, ये आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. यू विल डू इट एट होम. जो असाइनमेंट्स है वो आप कंप्लीट करेंगे.